with our lecture. So in the last session, we had seen how we can insert an image in a web page. And there are three different ways how you can insert an image. So can anybody tell me what are those three ways? Quickly. Yes, no one? इमेज हम कितने तरीके से एक वेब पेज में ऐड कर सकते हैं? I hope I am using audible. IMG tag. Okay, if you are using IMG tag, that means which type of image we are trying to add, means what is that called? It is called as inline या floating, है ना? That image will be floating on our web page, right? Next क्या देखा था हमने कि अगर हमने image को background set करना है तो we can set it as a background and उसके ऊपर सारा text आ जाएगा, right? And last we saw how we can have an image as a hyperlink. So in this what we had seen, image as a hyperlink मतलब क्या रहता है? First tell me what is a hyperlink. Yes, sorry. The particular image contains the address of the web page. Okay, but how it will act? क्या हो जाएगा वो image का? Is it going to be clickable? Yes, ma'am. It is going to be clickable Yes. when we click. Clickable. And once you click, it will take It us take from the us to first other page. page. Very good, very good. तो देखो मैंने यहाँ पे जो bold में bracket में लिया ना, that is a small hint. कि suppose आपको question आया है कि I want image as a background. तो अगर मुझे background में image लेनी है तो which tag I am going to deal with? I will be dealing with the body tag. Here in this body tag I have to make changes, right? तो body tag में हमने क्या change किया था? We were using attribute background. I hope you remember. Okay, we'll see the slide, that particular slide. अगर आपको image as a background लेना है तो see here pink color में जो दिया है that is the syntax body space background. So now what is this background? It is an attribute. Attribute का काम क्या है? Whenever you need to give some additional information about that tag, you make use of attribute. So हमने body का देखो body का background color क्या रहता है या background में क्या रहता है by default? It is white color. Now you are making changes into that section. That is why we are making the use of attribute, that is background. जिसका काम क्या है? आप जो भी image का path या जो भी image का नाम दोगे वो वहां पे background में आ जाएगी. So can you see here the third point? See मैंने यहाँ पे image का नाम क्यों दिया है? क्योंकि हमने क्या शॉर्टकट किया था कि एक फोल्डर बनाया था और उस फोल्डर में हमने वो इमेज कॉपी पेस्ट की थी. इसकी वजह से we can simply call it by its name. But if suppose that particular image which you want to call here is not in that folder, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ता है. पाथ मतलब क्या रहता है? कौन बताएगा what is the path? I mean, from C drive to करेक्ट मतलब yeah. सी ड्राइव देन विच फोल्डर उसका सब फोल्डर देन सब फोल्डर और ऐसा लंबा एकदम वो स्ट्रिंग हो जाएगा. एंड देयर आर चांसेस दैट अगर एक भी उसका पॉइंट कुछ मिस हो गया या एक भी कुछ कैरेक्टर स्किप हो गया तो दैट इमेज वोंट बी विजिबल. दैट इज व्हाई क्या एक ट्रिक बताई है कि जो भी इमेज आपको बुलानी है कॉपी दैट इमेज एंड पेस्ट इट इन योर फोल्डर. दिस इज द सिंपल वे हाउ यू कैन अचीव दिस image as a background. I hope it is clear. Should we move to the next slide? Yes, If ma'am. any doubt please share. Okay, तो नेक्स्ट हमने देखा फ्लोटिंग इमेज. फ्लोटिंग इमेज क्या रहती है? वो इमेज हमारे वेब पेज में कहीं पे भी फ्लोट हो सकती है. wherever it will get its position वो वहां पे रह जाएगी. ठीक है, इट वोंट बी एक्टिंग एज अ बैकग्राउंड. बैकग्राउंड मतलब क्या है? इमेज पीछे और उसके ऊपर टेक्स्ट आएगा. बट इफ यू आर टेकिंग इनलाइन इमेज ऐसा नहीं होगा. पहले आपकी इमेज आएगी एक्चुअली जैसे सीक्वेंस है कोड का वैसे वो आएगा. सपोज आपका बॉडी टैग में पहली लाइन इमेज की है तो पहले इमेज आएगी. अगर बॉडी टैग में आपने कुछ पैराग्राफ या कुछ टेक्स्ट लिखी है तो पहले टेक्स्ट आएगी एंड उसको जब भी इमेज का आईएमजी टैग काउंट एनकाउंटर हो जाएगा तो वो इमेज उधर फ्लोट हो जाएगी या इनलाइन उसमें ऐड हो जाएगी. सो दिस इज हाउ द इनलाइन इमेज वर्क्स. तो अगर आपको इनलाइन इमेज ऐड करनी है तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ आईएमजी टैग. ओके, नाउ दिस IMG टैग ये अकेला काम नहीं कर सकता है. उसको सपोर्टिंग उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स रखते हैं. तो व्हाट इज दिस SRC?
SRC एट्रीब्यूट क्या रहता है? We have seen all this. SRC एट्रीब्यूट क्या रहता है? IMG टैग अगर दोगे तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे जो फ्लोटिंग इमेज यहाँ पर डालनी है वो मैं कहाँ से लूँ। तो SRC में आप उस इमेज का नाम दोगे विद द एक्सटेंशन, और you can specify the whole path. So what we follow, we will simply give the name and extension. Why? Because we have already copy pasted that image into our folder, right? Then height width देखा था हमने, उसकी height width change की थी, remember? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And now very important attribute, that is the alt. Now understand कि alt जो है यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट देनी पड़ती है डिस्क्राइबिंग द इमेज. सपोज ऐसा कुछ वेब पेज में हो गया कि वो जो इमेज आपने डाली, सपोज मेरी एक इमेज है कंप्यूटर की, एंड वो क्लाइंट के साइड में वो कंप्यूटर की इमेज कुछ रीजन की वजह से दिख नहीं रही है, बट क्लाइंट को तो समझ में आना चाहिए या यूजर को समझ में आना चाहिए कि बाबा ये इमेज है किसके बारे में. तो आपको उस alt एट्रीब्यूट में उस इमेज के एक 2-3 लाइन में लिखना पड़ता है कि ये इमेज किसके बारे में है. when it is used when that image is not displayed on the web page, वहां पे alt में वो सारा टेक्स्ट आएगा describing the image कि ये इमेज किसके बारे में है. is it clear? Yes, ma'am. Okay, so below syntax are you able to view it? कैसे है? img tag start किया है and we are using its attribute src, तो कैसे लिखेंगे? space src equal to the image name and dot extension. It is very important. Simply name देना नहीं चलेगा, we have to mention its extension, right? तो ये इमेज उसको मिल गई. अभी मुझे वो इमेज पूरी की पूरी नहीं दिखानी है, मुझे उसका साइज कम करना है. That is why I have given height and width to that particular image. तो वो जो भी आप हाइट विड्थ दोगे वो ले लेगा उसका. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्ट में क्या लिया है? डेजर्ट इमेज. मतलब मेरी ये जो डेजर्ट इमेज अगर मेरे वेब पेज में नहीं दिखेगी तो क्या दिखेगा? Alt. ऑल्ट में आप जो भी दोगे वो, तो आपको ऑल्ट में उस बॉक्स के अंदर इमेज नहीं दिख रही तो उसमें क्या दिखेगा? डेजर्ट इमेज. आप जो भी कुछ टेक्स्ट यहाँ पे दोगे विच इज डिस्क्राइबिंग द इमेज वो उधर डिस्प्ले हो जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट इस पे जाए. Yes, ma'am. Okay. Now next we have seen how we can have an image as a hyperlink. So before that we will quickly see hyperlink क्या होता है. ये हमने already देखा है कि hyperlink मतलब it can be a clickable text or it can be a clickable image which will when clicked will take us from one page to another page, right? तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ता है anchor tag. Remember hyperlink आपको जब भी बनानी है तो हमको anchor tag यूज करना पड़ता है. तो anchor tag कैसे लिखा जाता है? angular bracket and capital A, that is the anchor tag. This anchor tag again it is a container tag. Container tag मतलब क्या है? जोड़ी में आएगा. Opening tag रहेगा, closing tag रहेगा. Okay. Now its attribute very very important. अगर आपने A tag लिया है तो वो लिंक जब आप क्लिक करोगे तो वो कहाँ जानी चाहिए? This additional information obviously we have to give to that A tag. Agree? Yes. उसने क्लिक करके कहाँ जाना चाहिए ये इंफॉर्मेशन हमको उस टैग को देनी है. तो हमें एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा क्या उसके? यस. स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई. Yes, ma'am. तो कैसे लिखा है देखो, सिंटैक्स में देखो. ए टैग ओपन किया है, स्पेस href. अभी href में हमको क्या देना पड़ेगा? उस पेज का पूरा पाथ देना पड़ेगा. मतलब सपोज आपको जीमेल पे जाना है तो यू हैव टू गिव http://www.gmail.com. अगर आपको जीमेल पे जाना है. अगर आपको आपके फोल्डर में ही कोई फाइल को जाना है तो आपको सिर्फ नाम और एक्सटेंशन देना है. तो सपोज दिस माय पेज डॉट html is a html file in my same folder where I am saving this particular code. ठीक है. एंड यहाँ पे देखो एंगुलर ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या लिखा है? क्लिक हियर. एंड ए टैग को बंद किया है तो हमको दिखते वक्त क्या दिखेगा? ये हाइपरलिंक दिखते वक्त क्या दिखेगी? हमको जब दिखेगा हाइपरलिंक तो हमको क्या डिस्प्ले क्या होगा? My page.
नो, माई पेज डॉट HTML को वो जाएगा, आपको जो दिखेगा वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। एंड ए टैग ओपनिंग और ए टैग क्लोजिंग के बीच में क्या लिखा है बताओ? ए टैग ओपनिंग और ए टैग क्लोजिंग। Click here for my क्लिक page. हियर, क्लिक हियर ही है ना सिर्फ। Yes, yes. हाँ, इधर मैंने क्या लिखा है? सिर्फ क्लिक हियर। तो आपको दिखते वक्त क्या दिखेगा? क्लिक हियर ब्लू में आएगा एंड अंडरलाइन रहेगा। When you will click on that click here, it will take us from the current page to mypage.html. So this is how a hyperlink work. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, सो अभी हम Yes. देखेंगे कि इमेज को हाइपरलिंक कैसे बने। अभी हमने क्या देखा? टेक्स्ट को। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ए टैग, सिंपली सी द सिंटैक्स। ए टैग ओपन किया है, ए टैग नीचे बंद किया है, और ए का कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है हमने? एचरेफ। एचरेफ क्या बताता है कि उसको क्लिक करने के बाद वो कहाँ जाना चाहिए। तो वी हैव रिटन इट शुड गो टू page2.html. obviously this page2 will be in my same folder where I am saving this particular code. एग्री? अभी ए टैग ओपन और ए टैग बंद, उसके बीच में क्या लिखा है बताओ? ए टैग ओपन, ए टैग बंद Ma'am, के the बीच में। image size and information. वेरी Which गुड, मतलब image? ये हमने इमेज का कोड लिखा है। इज इज द इनलाइन इमेज कोड जिसको हमको क्लिकेबल करना है। वी हैव टू मेक इट एज अ हाइपरलिंक। तो सिंपली आई हैड कॉपी पेस्टेड द कोड हियर इन बिटवीन ए। तो क्या हो गया? अभी मेरी क्लिक हियर के बदले मैंने इमेज ली है, तो मेरी इमेज क्लिकेबल हो गई है, राइट? ठीक है? Yes, ma'am. ओके, नाउ एचरेफ में हमने ऑलरेडी देखा है कि आपको यूआरएल देनी पड़ती है। वन मोर थिंग, हाइपरलिंक्स के कलर बदलते हैं क्या? वैसे के वैसे रहते हैं? Have you observed any Badal- changing color? बदलते हैं। See, whenever you are viewing that hyperlink for the first time, it appears in blue color with an underline. Agree? Hmm? When you ma'am. will click that link, it is called as the active link. वो फिर भी ब्लू में ही रहती है, ओके? एंड व्हेन यू विल गो टू दैट पेज एंड अगेन गो बैक, तो आपको उस लिंक में जो ब्लू कलर के सारे लिंक आए थे गूगल सर्च के, जो भी आपने विजिट की हुई लिंक है उसका कलर बदलता है। आई होप यू हैव ऑब्जर्व्ड इट। वो हो जाता है पर्पल, जस्ट टू इंडिकेट दैट यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस लिंक। डोंट गो टू दिस लिंक, यू व्यू अदर लिंक्स एज वेल। ठीक है? Yes, ma'am. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हॉरिजॉन्टल रूल लाइन। अगर आपको आपके वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, एक सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको HR टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है? HR टैग इज एन एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मतलब क्या है? सिर्फ उसका ओपनिंग टैग आएगा। जस्ट ऑब्जर्व द फर्स्ट सिंटैक्स, कैसे करना है HR। अभी इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स का काम क्या है वो देखेंगे। HR को अगर आपको वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको अगर आपको कलर देना है, तो यू कैन मेंशन the value of your color in the color attribute and observe the color spelling. आपने स्कूल में COLOUR पढ़ा है, बट here in HTML we have to use COLOR. ठीक है? तो कलर एट्रीब्यूट में आपने रेड दिया, तो वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन आएगी उसको कौन सा कलर आएगा? रेड आएगा। ठीक है? नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है? विड्थ। ये जो विड्थ है वो उसका लेंथ स्पेसिफाई करेगी। मतलब जो पूरी ब्राउजर विंडो है उसमें पूरी की पूरी 100% आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए कि सिर्फ आधी? अगर आधे पेज में चाहिए तो यू राइट 50%। सो दिस डिसाइड्स द लेंथ ऑफ योर हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर 50% दिया है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन, अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है तो इट इज मैंडेटरी टू कीप देम इन double quotes. Yes, have we discussed this earlier? या अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो इट इज मैंडेटरी दैट इट हैज टू बी एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। लास्ट इज साइज एट्रीब्यूट। साइज मतलब कितनी मोटी आपको वो या कितनी थिक चाहिए वो लाइन, दैट डिसाइड्स द साइज वैल्यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे 10 दिया तो बहुत ऐसी मोटी लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी। इफ यू वांट टू डिक्रीज इट, जस्ट डिक्रीज दिस नंबर। so this is how you will achieve a horizontal line in your web page. Clear? Should we move to the next slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ अभी देखो, अगर आपके पेज पे बहुत सारा टेक्स्ट है,
तो जनरली आप ऐसे एक के लाइन के नीचे लाइन लिखते हैं या ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते कि उस टॉपिक का एक पैराग्राफ, अलग टॉपिक का अलग अलग पैराग्राफ। तो जब भी आपको पैराग्राफ बनाना है तो आपको पी टैग का यूज करना पड़ता है। वेरी सिंपल, पी टैग इज कंटेनर टैग। जहां से आपको पैराग्राफ नया स्टार्ट करना है वहां से आप पी टैग शुरू करो, जहां आपको पैराग्राफ खत्म करना है वहां पी टैग बंद करो। सिंपल। सिंटैक्स में आपको कुछ एरर है या डाउट है क्या? देखो जरा, मैंने क्या किया है, मुझे अगर नया पैराग्राफ कोई एक 3-4 लाइन को देना है एज ए न्यू पैराग्राफ, तो मैंने क्या किया, पी टैग को ओपन किया एंड एट द एंड मैंने पी टैग को बंद किया और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो एक मेरा अलग पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है? एनी डाउट? No. Now very No. important, today we will see how we can have a table in a web page. So first tell me, what does a table consist of? आप कैसे बताते हैं कि ये एक टेबल है? Column. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एग्री। तो मुझे बताओ, ये जो मेरा टेबल है उसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है? 3 4 by rows, 6. 4 columns. 4 rows. सो ओके, 4 रोज एंड 4 कॉलम। मुझे बताओ, रोज को कैसे काउंट करते हैं आप, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? Horizontally. Horizontally. एग्री एवरीवन? Horizontally. एक्चुअली इसमें ही बच्चों का ये होता है कंफ्यूजन कि मैं रोज और कॉलम्स को काउंट कैसे करूं। तो स्टूडेंट, रोज जो रहते हैं वो आप हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं। No, rows are counted horizontally and columns are counted vertically. So मेरे rows कैसे हो जाएगी? SR नंबर 1 2 3, ये जो है डेट आपको दिख रहा है, दैट ऑल आर माय रोज एंड कॉलम्स, SR नंबर, रोल नंबर, नेम एंड टी, ये जो खड़े वाले हैं उसको बोलते हैं कॉलम्स। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो ही हम आगे का टेबल का अच्छे से समझ पाएंगे। इज द रो एंड कॉलम काउंटिंग कंसेप्ट क्लियर कि कैसे रो देखनी है और कैसे कॉलम को देखने हैं? Yes, ma'am. ओके, सो नाउ अगर आपको टेबल बना है तो ऑब्वियसली टेबल टैग यूज करना पड़ेगा, बट सिर्फ टेबल टैग यूज करके हमारा काम नहीं होगा, उसके अंदर हमको और भी टैग्स यूज करने पड़ेंगे जिससे वी कैन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर टेबल इन आवर वेब पेज। सो हियर आर सम टेबल टैग्स वी विल सी टू डिजाइन अ पर्टिकुलर टेबल। तो पहला टेबल टैग हमको लगेगा, देन यू विल रिक्वायर अ कैप्शन टैग। कैप्शन मतलब अगर आपको टेबल को कुछ नाम देना है तो you will require that caption tag. Next is tr. tr मतलब क्या रहेगा? Any guesses? tr मतलब टेबल रो। तो फर्स्ट यू नीड टू काउंट कि कितने मेरे रोज होंगे। तो अगर tr आपको यूज करना है तो हमको tr कितने बार यूज करना है ये आप पहले बताओ मुझे। कितने रोज है हमारे? 4 रोज है। तो हमारा ये जो tr टैग है वो कितनी बार आएगा हमारे कोड में? What do you think? If there are 4 4 rows, times. so this obviously tr tag will come 4 times, right? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now next, are you observing that there are some table heading and below that heading actual data is there? Yes, ma'am. Yes. है ना? Right? So can you tell me how many headings are there in my table? 4. 4. 4. 4. What are the headings? Serial number, roll number, name and team. Right? So these are my what? Headings. So मेरा th tag, that is table heading, कितने बार आएगा? 4 times. 4 times. Okay. अभी ये जो हेडिंग है उसके नीचे जो आया है उसको बोलते हैं एक्चुअल डेटा, है ना? उसका जो नीचे जो है वो एक्चुअल डेटा है, राइट? और बहुत तेज बीमार पड़ गई थी, बच्चे का कोई ऐसा नहीं था। उसके बाद से यस, इज इट क्लियर? टीएच हमारा कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। अभी ये जो हेडिंग है उसके नीचे हमारा एक्चुअल डेटा है क्या? तो कैन एनीबॉडी टेल मी दिस टीडी टैग विल रिपीट हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी डेटा आर देयर? 3. Yes, any other answer? 12. 12 na? Yes, 3, 12, any other answer? So why 3? जिसने 3 बोला, can you please tell me how did you got this 3 number? Because there are 3 rows and in that
3 rows, the data is filled. See, we have already done with the TR. TR हमारा 4 बार आएगा, TH हमारा 4 बार आएगा. Now actual data आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 1 2 3 1001 1002 1003 जॉन, पीटर, हेनरी, ये अलग अलग जो सेल्स दिख रहे हैं, दैट इज ऑल डेटा. तो हमारा जो TD टैग है इट विल कम 12 टाइम्स, क्योंकि जितने भी सेल्स रिमेनिंग है उसके लिए हर एक के लिए हमको TD टैग लगेगा. तो 1 के लिए एक टैग, 2 के लिए TD टैग, 3 के लिए TD टैग, ऐसे करके हमको TD टैग कितने बार लगेगा? 12 बार लगेगा. ठीक है, 12 टाइम्स विल रिक्वायर इट. इज इट क्लियर हियर कि ये कितने बार टैग्स आएंगे? Yes, ma'am. सो दैट, हाँ पक्का सबको समझा है? ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ टेल मी हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर हियर? There are 3 rows and 3 4 rows and 4 3 rows columns. and 4 columns. Very good. How many TH tags will be coming? 4. 4. Very good. कौन सी? Employee name, employee code, project code and employee designation. How many TD tag will come? 8. 8. Excellent. Very good. So let us see the next table. अभी मुझे बताओ कि कितने rows है और कितने columns है. 3 rows. 4 columns. ओके, तो देखो अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे काउंट करना है. एक्चुअल पूरा टेबल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्चुअली उसमें है कितने रोज? सिर्फ बायोलॉजी वाली एक रो, प्रैक्टिकल वाली एक रो, ए वाली एक रो और ए वाली एक रो, ऐसे आप बीच का जो सेकंड कॉलम है उसको ऑब्जर्व करो. तो हियर यू कैन सी देयर आर 4 रोज. ऑब्वियसली सम सेल्स आर मर्ज्ड, जिसमें क्या हुआ है, कोई रोज कंबाइन हुए हैं या कोई कॉलम्स कंबाइन हुए हैं. इसके वजह से आपको लग रहा है कि ये रोज अलग है, बट नहीं. आप अगर पूरा टेबल ऑब्जर्व करोगे तो जो बायोलॉजी वाला कॉलम है उसको ऑब्जर्व करो कि बायोलॉजी का एक रो, प्रैक्टिकल का एक रो और एक रो, ऐसे 4 रोज है. तो दिस होल टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 रोज. इसमें कुछ डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. समझा है आपको 4 रोज कैसे आए हैं? Here there are some cells which are merged. मर्ज मतलब क्या है? 2 रोज को एक किया है या 2 कॉलम को एक किया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए. इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है. बट इफ यू प्रॉपर्ली ऑब्जर्व द टेबल, देयर आर टोटल 4 रोज. इफ द रो concept is clear, can I get the number of columns? No, ma'am. कॉलम नंबर नहीं समझ में आ रहा है, कैसे काउंट करेंगे? समझ में आया. नहीं, कॉलम नंबर्स के कितना आएगा? अभी अगर आपको रो समझा है तो यू कैन डेफिनेटली टेल मी द नंबर ऑफ कॉलम. यस, कॉलम्स कैसे काउंट करोगे आप? वर्टिकली काउंट करोगे तो कितने कॉलम्स दिख रहे हैं? 7. 7. एवरीवन 7. Yes. ओके, तो वेरी गुड. हमारे रोज जो है वो 4 है और कॉलम जो है वो 7 है. अभी ये जो स्टूडेंट नेम है, उसमें आप देखो क्या कंबाइन किया है उन्होंने? रो कंबाइन किए है कि कॉलम कंबाइन किया है? Row. इफ यू ऑब्जर्व द स्टूडेंट नेम, उसमें उन्होंने क्या कंबाइन किया? रो मर्ज किया है, कॉलम मर्ज किया है. सी, स्टूडेंट नेम जो सेल है उसमें 2 रोज का एक सेल बनाया है. तो हियर यू कैन से इट इज मर्जिंग 2 रोज. तो अगर ऐसी केस है तो उसको बोलते हैं रो स्पैन. क्या बोलते हैं? अगर रोज को मर्ज किया है तो उसको बोलते हैं रो स्पैन. इज इट क्लियर स्टूडेंट नेम का? ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन मैम फिर बायोलॉजी. से रिपीट करें. क्या वो क्या बताऊं? ये कॉलस्पैन रोस्पैन बताओ. क्या आपको रोज कॉलम समझ में आया? नहीं मैम. रोज और कॉलम्स भी नहीं समझ में आया. ओके, सो आई एम रिपीटिंग अगेन. सी, आप ये पूरा टेबल जब ऑब्जर्व करोगे तो अगर आपने पहले कॉलम से स्टार्ट किया, मतलब स्टूडेंट नेम जॉन डी, टोई एंड मिरियम, ऐसा अगर आप काउंट करोगे तो आपको कितने रोज दिख रहे हैं? 3 रोज दिख रहे हैं. बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं. आप अगर पूरा टेबल देखोगे तो मैक्सिमम उसके कितने रोज है? जस्ट ऑब्जर्व द बायोलॉजी
कॉलम, उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि बायोलॉजी वाला जो है वो पूरा एक रो है, प्रैक्टिकल उसके नीचे जो है वो पूरा एक रो है। यहाँ पे क्या हुआ है, मर्ज किए हैं दो सेल्स को मर्ज किया है, इसके लिए आपको कंफ्यूजन है तो समझ के ले लो। बायोलॉजी वाला एक रो, उसके नीचे वाला प्रैक्टिकल का एक रो, उसके नीचे क्या है, प्रैक्टिकल के नीचे क्या है, ए, वो वाले पूरी एक रो, एंड नीचे भी और एक बार ए है, वो भी एक पूरी रो। तो ऐसे बन गए हमारे रोज कितने बन गए, जिनको अभी डाउट पूछा था, आपको समझ में आया? यस मैम. हाँ, रोज कितने आले आपले, 4 आले का? हो मैम. ओके, नाउ वी विल सी द कॉलम्स। ओके, तो कॉलम हम कैसे काउंट करते हैं, वर्टिकली। अगर आप स्टूडेंट नेम से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो आप ऊपर की रो में देखोगे तो 1 2 3 4 ही आपको दिखेंगे, बट इज इट दैट केस, हमारे टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कितने कॉलम्स दिख रहे हैं आपको उसके अंदर, सिर्फ एक सेल को आप मत देखो, टोटल 7. देयर विल बी 7। हाउ, स्टूडेंट नेम वाला पूरा एक कॉलम, ठीक है। अभी बायोलॉजी वाले कॉलम को अगर आप देखोगे तो वो जो पर्टिकुलर सेल है उसको मर्ज किया है, यहाँ पे 2 कॉलम को मर्ज करके एक सेल बनाया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। उसके नीचे थोड़ा देखो तो वहां पे अगेन देयर आर 2 कॉलम्स। यस मैम. यस, सो 1 2 3 हो गए। अगेन केमिस्ट्री का अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री के नीचे वापस 2 कॉलम्स बनाए हैं, सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, उसको क्या किया उन्होंने, मर्ज किया है। किसको मर्ज किया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को रो को मर्ज किया है कि कॉलम को मर्ज किया है? कॉलम कॉलम को, कॉलम. है ना। तो अगर कॉलम को मर्ज किया है तो उसको बोलते हैं कॉल स्पैन, और अगर रो को मर्ज किया है मतलब स्टूडेंट नेम, तो उसको बोलते हैं रो स्पैन। ठीक है, यस मैम. ठीक है। हाँ, अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे टीडी तो हो गया, हम टीआर तो हो गए, कितने रोज आएंगे, तो दैट विल बी 4 टाइम्स Ma'am, टीआर please can you explain of column? कॉलम। ओके, सी अगर आप देखोगे ऐसे कॉलम, फर्स्ट रो कौन सी है हमारी, स्टूडेंट नेम, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फर्स्ट रो। यस प्लीज रिप्लाई। फर्स्ट रो अगर हम देखेंगे तो क्या है उसमें, स्टूडेंट नेम, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो कितने कॉलम आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, राइट। बट ऐसा है क्या, नहीं, उसके थोड़ा नीचे आप ऑब्जर्व करो कि वहां पे वापस कॉलम्स है उसके नीचे। इन्होंने क्या किया है, पहली रो जो है उसको क्या किया उन्होंने, मर्ज किए हैं 2 2 सेल्स, 3 3 सेल्स, इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर जब भी कुछ मर्जिंग रहता है तो उसको बोलते हैं, अगर कॉलम मर्ज किए तो कॉल स्पैन, रो मर्ज किए है तो रो स्पैन। तो नीचे सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड रो में आपको क्या दिखेगा, स्टूडेंट नेम का एक कॉलम है, प्रैक्टिकल का कॉलम है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी। So if you count this, it comes to 7. So this is how we are getting 7 as the column number. समझ में आया है? यस Yes, can we move forward? चलो जल्दी जल्दी Yes, ma'am. बताओ। यस मैम. यस ओके, Yes, अभी Yes, मुझे ma'am. बताओ इसमें TH कितने बार आएगा? How many headings are there? First count. 7 6 7, 6. No. ओके। सो पहले ना हम हेडिंग के नाम ही देखते हैं। स्टूडेंट नेम हेडिंग आएगा, यस मैम Yes Yes, ma'am. ma'am. बायोलॉजी हेडिंग आएगा, Yes. Yes, ma'am. केमिस्ट्री, Yes, ma'am. Yes फिजिक्स, ma'am. Yes. ओके। Yes. तो प्रैक्टिकल थ्योरी ये नहीं आएंगे कि हेडिंग? आएंगे आएंगे मैम. बायोलॉजी के 2 प्रैक्टिकल थ्योरी, केमिस्ट्री के 2 प्रैक्टिकल थ्योरी, एंड फिजिक्स के 2 सब प्रैक्टिकल होंगे ना, थ्योरी। तो हाँ, तो सभी सब हेडिंग है, हेडिंग तो होंगे वो। टोटल सभी है. कितने हैं? दैट इज व्हाट आई एम 7 आस्किंग। 10 10। 10. ओ 10. गॉड, मैम जॉन डोई बस और दे आर डेटा। 10 और नीचे वाला मत देखो, ये सारा डेटा है फ्रॉम द थर्ड 10 रो। 10 10 है ना, 10 स्टूडेंट नेम, हाँ 10. बायोलॉजी, फिर बायोलॉजी के नीचे भी प्रैक्टिकल थ्योरी, वो एक सब हेडिंग है उसका, so that will also be a th tag. Okay, so this is how we got the heading number as 10. यहाँ पे डाउट है किसी को? नहीं. No, ma'am. नहीं, नो मैम. अभी हेडिंग दिया है तो उसके नीचे हमारा डेटा आएगा, तो कितने आएंगे डेटा बताओ, टीडी टैग कितनी बार आएगा?
14. 14. करो ना, क्या बोल रहे हो? Excellent. Very good. 14 Very मैम. करेक्ट करेक्ट. ओके, तो आपको अच्छे से समझा है. अभी हम जब एक टेबल को बनाएंगे तो जस्ट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस. हमको रो वाइज जाना है. तो जब हम टेबल बनाएंगे तो पहला टेबल टैग ओपन करने के बाद हमको क्या पहली रो मिलेगी. तो पहली रो क्या रहेगी? टीआर. पहले हम ये ना जो सिंपल वाला है हमारा ये देखेंगे. तो पहली जो रो रहेगी टीआर, उसमें हमको टीएच डालना है. क्यों? क्योंकि पहले रो में क्या है? सारा हेडिंग है. क्या अंडरस्टैंड? वी आर ट्राइंग टू मेक द कोड ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल. पहली रो टीआर में जब स्टार्ट करूंगी तो उसके अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा? टीएच के टीडी. TH. टीएच. टीएच हमारा कितनी बार आएगा? एसआर नंबर, रोल नंबर एंड नेम एंड टीम. ये 4 टीएच हमारे इस रो में आएंगे. उसके बाद हमारी रो खत्म होती है क्या? टीम के बाद पहली रो. यस मैम. हाँ, तो हमारा रो खत्म हो रहा है तो वी विल बी एंडिंग द टीआर टैग. मतलब क्या है? एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टीआर. इज द फर्स्ट रो क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next coming to the new row, second row. So again we have to start with our new tr tag. Okay, now here tr tag के अंदर आप क्या क्या लोगे? डेटा है कि हेडिंग है? यहाँ पे अगर सेकंड रो आप ऑब्जर्व करोगे, Data. 11001 जॉन रेड, दिस इज डेटा. तो सेकंड रो में टीडी कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा. एग्री? 1101 जॉन रेड. यहाँ पे मेरी सेकंड रो खत्म हुई क्या? रेड के बाद. Yes. Yes. So I will be ending the tr tag. Okay, I will be ending the tr tag, and again on new row I have to start with new tr. That is my row number 3. उसमें वापस क्या आएगा? टीडी कितनी बार आएगा? 1 2 3 4. ऐसे कर करके आप देखोगे कि ग्रीन तक आपका फोर्थ रो आएगा. उसके बाद मेरी रो भी खत्म होगी. एंड एम आई एंडिंग माई टेबल एज वेल? यस मैम. Yes. तो मेरा वहां पे टेबल टैग भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, हम कोडिंग इसका देखेंगे. डोंट गेट वरीड. नाउ वी विल सी सम एट्रीब्यूट्स. ये आपको समझ में आया हो. टेबल टैग आपको लगेगा कैप्शन किसके लिए लगता है? जस्ट टू गिव अ टेबल हेडिंग. देन टीआर टैग इज आवर टेबल रो. टीएच मतलब क्या है? हमारा टेबल हेडिंग. देन टीडी मतलब हमारे जो एक्चुअल डेटा है वो है सारा. ठीक है. Now we will see the attributes of table. Attribute मतलब क्या है? Again some additional information for that particular tag. तो अभी हम कौन सा टैग देख रहे हैं? टेबल. तो इस टेबल में हम और क्या एडिशनल, अगर एट्रीब्यूट यूज नहीं किया तो आपके टेबल में, हेलो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. हाँ. Yes. ओके. तो अगर आपने बॉर्डर यूज नहीं किया है तो हमारे टेबल को बॉर्डर ही नहीं आएगी. मतलब क्या है? सिर्फ आपको उसका डेटा दिखेगा प्रॉपरली प्लेस, बट जस्ट लाइंस रहते हैं ना, लाइंस, दैट बॉर्डर यू विल नॉट बी एबल टू व्यू. तो अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आपको बॉर्डर इक्वल टू सम नंबर देना है कि कितनी थिकनेस आपको बॉर्डर के लिए चाहिए. ठीक है. इज द बॉर्डर पार्ट क्लियर? यस मैम. ओके. Yes, ma'am. नाउ इफ आई वांट अ कलर बॉर्डर, अगर बाय डिफॉल्ट हमारी बॉर्डर क्या आती है? ब्लैक कलर. मुझे चाहिए कि रेड कलर चाहिए बाबा मेरे टेबल को. तो व्हाट आई विल यूज द एट्रीब्यूट बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड. नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने कोड ऐसे लिखा है, ठीक है, टेबल स्पेस बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, हाँ, तो मेरी बॉर्डर आएगी क्या? डिड यू गेट माय क्वेश्चन? मैंने लिखा है कोड में, टेबल टैग ओपन किया है, स्पेस बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज. So my question is, will I get the red border or not? Yes, ma'am, you will get. You will get. तो मतलब आपका ध्यान नहीं था. मैंने अभी पहले क्या बताया? Ma'am, अगर it should आपने be in double बॉर्डर, quotes. नो, लिसन, बॉर्डर अगर आपने एट्रीब्यूट यूज ही नहीं की तो पहली बात तो उस टेबल को बॉर्डर आएगी नहीं. तो आपने भले ही बॉर्डर कलर कुछ भी दे दो, वो आएगा ही नहीं कलर, क्योंकि आपने बॉर्डर ही नहीं ली है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So first you have to give the border, then only you can give color to it. Yes, So ma'am. if I want to give color to the border, how will my tag change? Table opening tag space border equal to 2 space border color equal to red.
then only I will get the border with red color. समझा? Yes, हाँ ma'am. मैम। समझा? हाँ, Yes, ठीक है, ma'am. वेरी गुड. अलाइन क्या रहेगा? अलाइन क्या लगता है आपको? अलाइन क्या रहेगा? Ma'am, अलाइन alignment of the मतलब एक text. मतलब एक सीरीज में अलाइनमेंट ऑफ द मतलब। टेबल. सो मैं मेरे वेब पेज में मेरा टेबल लेफ्ट को रखूं, सेंटर में रखूं या राइट को रखूं? मुझे जैसी रिक्वायरमेंट में वैसे रखूंगी. सो व्हाइल अलाइनिंग, अगर आपको टेबल को सेंटर में अलाइन करना है तो आपको टेबल की एट्रीब्यूट क्या यूज करनी पड़ेगी? टेबल स्पेस अलाइन इक्वल टू सेंटर. राइट? यस, हाँ. राइट. ओके. लास्ट इज बीजी कलर. क्या लगता है आपको बीजी कलर मतलब क्या करेगा वो? बैकग्राउंड में कलर। Okay, so my question is whether it will apply this BG color to the whole web page or only my table? Only Only table. table. Only my table. Only क्योंकि table. हम सिर्फ टेबल के एट्रीब्यूट बीजी कलर लिखते हैं. हम लोग किस टैग में लिखेंगे? टेबल स्पेस बीजी कलर इक्वल टू पिंक. तो मेरे टेबल जो पूरा है उसको बैकग्राउंड कलर पिंक आएगा. मेरे वेब पेज पूरे इसको बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा. राइट? सो नाउ लेट अस सी द एट्रीब्यूट्स ऑफ the tags which we have seen, tr tag, th tag and td tag, right? तो इन तीनों की कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स है that we will discuss. There are some common which we have already seen. उसमें से है अलाइन. अगर आपको टेबल का जो हेडिंग है या टेबल का जो डेटा है उसको लेफ्ट राइट अलाइन करना है तो आप क्या यूज करोगे? अलाइन एट्रीब्यूट. ठीक है? मतलब उस सेल के अंदर जो भी डेटा है उसको आप अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट को, राइट को, सेंटर. ठीक है? अलाइन इज क्लियर? यस, अलाइन ma'am. इज क्लियर. ओके. Yes, नाउ ma'am. नेक्स्ट इज बीजी कलर. ये रो स्पैन कॉल स्पैन हम देखेंगे बाद में. बीजी कलर मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर, सपोज मैंने लिखा है टीआर स्पेस बीजी कलर इक्वल टू पिंक, तो क्या होगा बताओ? tr space bg color equal to pink. So for that only particular row जिसके लिए मैंने ये bg color लिखा है उसी रो को वो कलर आएगा. एग्री? सपोज ma'am. मेरे 4 रोज है, हाँ 4 रोज है और उसमें से मैंने थर्ड रो को ये लिखा है कि tr space bg color equal to pink. So my only third row will get that pink color. Why? Because I am using this bg color attribute with that particular tr which is third row. सबको अप्लाई नहीं होगा. एग्री? नेक्स्ट, कॉल स्पैन मतलब क्या हमने देखा अभी. व्हाट इज अ कॉल स्पैन? कॉल स्पैन मतलब आप जब भी कोई कॉलम्स को मर्ज करते हैं, सपोज मैंने एक सेल में 3 कॉलम्स को मर्ज किया है तो माय कॉल स्पैन वैल्यू बिकम्स 3. ओके, अगर मैंने 4 कॉलम को मर्ज करके एक सेल बनाया है तो माय कॉल स्पैन वैल्यू बिकम्स, yes, it becomes, if my 4 columns are merged, 4. तो जितना भी आपने मर्जिंग किया है, रो हो या कॉलम हो, वो नंबर वहां पे आएगा. सिमिलरली अगर मैं रो को कंबाइन कर रही हूँ, सपोज आई एम कंबाइनिंग 3 रोज एंड मेकिंग दैट सेल इनटू सिंगल सेल, 3 रोज को कंबाइन करके, तो माय रो स्पैन विल बी व्हाट? 3. ओके. ओके, तो मुझे अभी यहाँ पे इस टेबल में बताओ कि रो स्पैन कितना आएगा. कहाँ पे यूज हुआ है रो स्पैन वो बताओ पहले. स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट नेम को रो स्पैन हो गया. वेरी गुड. व्हाट विल बी माय रो स्पैन वैल्यू? 2. एक्सीलेंट. हमने 2 रोज कंबाइन किए. नाउ एनी एग्जांपल ऑफ कॉल स्पैन हियर इन दिस टेबल? Practical and theory. Practical and theory are not merged. Those are the individual Biology. Actually, Biology and biology, chemistry and physics ये merge हुआ है. Biology, chemistry, and physics. Yes, yes. So 2 columns को merge किया है, biology को, 2 columns chemistry and 2 columns physics. So call span की value यहाँ पे क्या आएगी? 2 for every th. मतलब th space call span equal to 2 biology के लिए, th space call span equal to 2 chemistry के लिए and same th space call span equal to 2 for physics. So this is how we have seen how the call span and row span work. Okay. So ये टेबल हम अभी वापस नहीं लेंगे. We have already seen this. अभी यहाँ पे देखो,
ये और ये सारा आपके टेक्स्ट बुक में है। इधर मुझे बताओ पहले तो रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं? रोज कितने हैं, कॉलम्स रोज कितने हैं? 2 है। रोज 2 है, वेरी गुड। 2. एंड कॉलम्स 2. 2, एक्सीलेंट। मतलब टीआर मेरा कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। अभी मुझे बताओ हेडिंग कितने हैं यहाँ पे? टीएच कितना है? 1 और 3. टेबल हेडिंग Three. इज ओनली 1, दैट इज द कलर्स। कलर्स हेडिंग है और उसके बाजू में आपने डेटा दिया है, तो टीडी हमारा कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। क्यों? क्योंकि रेड एंड ग्रीन आर द डेटा एंड कलर्स इज द टीएच। हेडिंग है कलर्स, उसके नीचे आएगा रेड और ग्रीन उसका डेटा। ठीक है, इज इट क्लियर और कंफ्यूजन है? नहीं मैम क्लियर होगा। ओके, अभी इसमें बताओ रो स्पैन है कि कॉल स्पैन है? रो स्पैन। व्हाई? बिकॉज़ वी आर यूजिंग 2 रोज। नाउ ऑब्जर्व द कोड हियर। देखो ये कोड कैसे दिया है? बॉडी देन टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, मतलब क्या अभी होगा? हम जो भी टेबल बनाएंगे उसको बॉर्डर आएगी, राइट? सो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट रो। व्हेन वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट रो, आपको क्या एनकाउंटर हुआ कि इट इज अ, अभी यहाँ पे देखो उन्होंने हेडिंग नहीं लिया है, उन्होंने डेटा कंसीडर किया है। सो इट माइट हैपन कि आपका जो डेटा है वो टीडी रखे या टीएच रखे, इट इज ओके। ऐसे टेबल में अगर ऐसा टेबल है तो यहाँ पे हेडिंग आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सीरियल नंबर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये हेडिंग है, उसके नीचे एक्चुअल डेटा है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इफ यू राइट टीडी और टीएच इट इज ओके। अभी फर्स्ट रो मुझे बताओ क्या आएगा? टीआर ओपन होने के बाद टीडी या टीएच आप कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज हमने टीडी डाला तो टीडी स्पेस कॉल स्पैन इक्वल टू रो स्पैन इक्वल टू Row कॉल span स्पैन आएगा equal. रो स्पैन। तो रो स्पैन इक्वल टू 2 टैग बंद, मतलब ओपनिंग टैग बंद, उसके बीच में कलर्स एंड टीडी बंद। उसके बाद में क्या था? फर्स्ट रो में देयर वाज अ टीडी विथ कलर रेड, तो सिंपली बीजी कलर उसको रेड किया है एंड रेड आया है उसके अंदर। इज माय फर्स्ट रो ओवर आफ्टर रेड? यस Is my row over after red? Okay. Now अभी न्यू रो पे जब हम आएंगे तो सेकेंड रो पे भी हमको कलर्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मर्ज किया है। बट एज वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस कलर्स इन द फर्स्ट रो, वी कैन स्किप दिस एंड सिंपली सेकेंड रो में हमारा क्या रह जाता है? हमारा रह जाता है ग्रीन। तो ग्रीन आप देखोगे कि सेकेंड रो में के बारे में लिखा है टीडी स्पेस बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन एंड उसका टेक्स्ट क्या है? ग्रीन। तो जब भी आप रो स्पैन करते हैं तो वो उस रो में ऊपर ले लिया तो नीचे के रो में आपको उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? सेकेंड रो में कलर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि कलर्स हमने फर्स्ट रो में उसका काम हो गया है। ऑलरेडी वी हैव गिवन दैट वैल्यू टू फर्स्ट रो की उसका है रो स्पैन। मतलब आपको जब सेकेंड रो बनाएंगे तो सिर्फ ग्रीन जो है रिमेनिंग उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इधर क्विकली बताओ मुझे क्या है कॉल स्पैन की रो स्पैन? कॉल स्पैन। कॉल स्पैन है ना, किसके लिए आएगा? टीडी स्पेस कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कलर्स, है ना। और नेक्स्ट रो में क्या आएंगे? टीडी आएंगे 2 बार, राइट? सो हियर यू कैन सी पहले रो में हमने सिर्फ लिखा टीडी कॉल स्पैन 2 अलाइन सेंटर कलर्स। न्यू रो में मतलब हमारे 2 चीजें हैं, 2 टीडी है, तो टीडी रेड एंड टीडी ग्रीन जिसको हमने बैकग्राउंड कलर लगाया है। ओके, यस मैम। ठीक है। So this is how we are ending with the table concept. In the next lecture we will start with the forms in HTML. ठीक है, so just hold on, let me take your attendance and then you can quickly join your another lecture.